Welcome to the online classes of SGOI. Students, today I will discuss the chapter polynomial and their factors with some questions, okay? Miscellaneous question. Now see the first question. M raised to 8 minus 11, M raised to 4, N raised to 4 minus 80, N raised to 8, okay? What will we do? Firstly, we let L is equals to M raised to 4 is equals to X and N raised to 4 is equals to Y. Okay? Then this equation become, we can write M raised to 4 whole of square minus 11 M raised to 4 N raised to 4 minus 80 N raised to 4 whole of square. Okay. Now put the value of M raised to 4 and N raised to 4. It become X square minus 11 X Y minus 80 Y square. Okay. Now factorize the equation. Then firstly multiply 80 x square and 80 y square into x square become 80 x square y square. When we factorize it, it become minus 11. As we know that 16 5s are 80. Okay. 16 5s are 80 and 16 minus 5 is 11. Then this is 16 xy minus 5 plus 5 xy minus 80 y square. Now check it. Minus 16 plus 5 become minus 11. And when we multiply it, minus plus minus 16 5s are 80 and xy into xy become x square y square. Okay. Now here we take common x, then it become x minus 16. Okay. And here we take common plus 5y, then it become x minus 16 y. After taking common x minus 16, we get x minus 16 plus x plus 5y. Okay. Now put the value of x and y. We get m 4 minus 16 and the value of x is m raised to 4 plus 5 n raised to 4. Okay. Student, here we can solve this by the identity a cube minus b cube. Okay. Then use it. It become m square whole of square minus 4 square whole of square. Okay. And m4 plus n4. Okay. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. Here we use the identity a square minus b square. Okay. Now use it. Then after using m square minus 4 and m square plus 4. Okay. A minus b and a plus b, where the value of a is m square and b is 4. Okay. Now m raised to 4 plus 5 n raised to 4. Okay. Now here we can again use the identity. Use it. It become, firstly we can write it m square minus 2 whole of square. Okay. And m square plus 4 and m raised to 4 plus 5 raised to 4. Clear? Now after using the identity, it become m minus 2 m plus 2
and m square plus 4 and m raised to 4 plus 5 and 4. Now student, this is the final answer of the question. The factors are m minus 2, m plus 2, m square plus 4 and m raised to 4 plus 5 n raised to 4. Okay. Now student, the next question is 12 x square plus 7x whole of square minus 8x square plus 7x into 2x minus 1 plus 2x minus 1 whole of square. Okay. Let's see the solution. Firstly, we let x square plus 7x is equals to a and 2x minus 1 is equals to b. Okay. Now put the value. Then the equation become 12 x square a square minus 8 a b plus b square. Okay. Now factorize the equation. For factorizing, we know that 6 2s are 12 and 6 plus 2 8. Then we can write it 12a square minus 6a minus 2b plus b square. Okay. Now check it. Minus 6a into minus 2b become plus 12ab and minus 6a minus 2b become here 6. This is 6ab and 2ab. Then minus 6ab minus 2ab become minus 8ab. And when we multiply it, we get plus 12a square b square. Okay. Now, after taking common 6a, we get 2a minus b. Here we take common minus b. We get 2a minus b. Okay. Now students, here we take common 2a minus b and 6a minus b. Now put the value of a and b. After putting the value, equation become 2a is equals to x square plus 7x minus b. b is 2x minus 1. Okay. Similarly, 6a, value of a is x square plus 7x minus b. b is 2x minus 1. Okay. Now solve it. When we multiply, it becomes 2x square plus 7 2s are 14x minus 2x plus 1. Minus 1 change into plus 1. Okay. Here 6x square plus 7 6 are 42x minus 2x plus 1. Okay. Now students, it become 2x square plus 12x. 14x minus 2x is 12x plus 1. Here 6x square minus 40 plus 40x plus 1. Okay. Okay student. This is the final answer of the question. The factors are 2x square plus 12x plus 1 and 6x square plus 40x plus 1. Okay. Okay student, the next method is factorization of sum and difference of cube. Okay.
Here we use the identity. We know that a cube minus b cube is equals to a minus b, a square plus ab plus b square. Okay, and the second identity is a cube plus b cube is equals to a plus b and a square minus ab plus b square. We use these two identities for the factorization. Okay, let's see the example. The first question is x cube minus 8y cube. Now we can write it x cube minus 2y whole of cube. Okay, now after using the identity, here we use the identity first. A cube minus b cube means x minus 2y and x square plus x into 2y plus 2y whole of square. Then it become x minus 2y and x square plus 2xy plus 4y square. This is the answer. Okay, now see the next example. We can write it p upon 7 whole of cube minus 2q plus 2q whole of cube. We use the second identity, a cube plus b cube. It become p plus 7 plus 2q and p by 7 a square minus ab means p 7 into 2q plus 2q whole of square. A square minus ab plus b square. Then p plus 7 plus 2q and p square upon 49 minus 2pq upon 7 plus 4q square. This is the answer. Okay, students. The next question is a plus 2b whole cube minus a minus 2b whole cube. Again we use the identity a cube minus b cube. It become a minus b. Okay. Now students, here we can let a plus 2b is equals to x and a minus 2b is equals to y. अगर आप चाहें तो लेट करें, अदरवाइज ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस लेट करने से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आप लिखना कम हो जाएगा, बस इतना होगा. ओके, देन इट बिकम x क्यूब माइनस y क्यूब. नाउ यूज इट identity x minus y x square plus xy plus y square. Okay, now put the value of x and y. A plus 2b minus a minus 2b. Okay, here a plus 2b whole of square plus a plus 2b and a minus 2b. Okay, and plus a plus minus 2b whole of square. Okay, students. Now a plus 2b, when we use it here, it become a plus 2b. Okay, minus sign change into plus 2b and we cancel out it. Here we can use the identity a plus b whole of square, which is a square plus 4b square plus 4ab. After using the identity, it become a square plus b square plus 2ab. Okay, now
Here we can use identity a minus b. A plus b means a square minus b square means 4b square plus a square plus 4b square minus 4ab. Okay. Now students, this is plus 4ab minus 4ab and minus 4b square plus 4b square. Now the remaining terms are two b is 4b and here a square plus a square plus a square become 3a square and 4b square plus 4b square and this is the factor. Okay, then the answer is 4b and 3a square plus 4b square. This is the final answer of the question. Okay students, now see the next question. Here the next question is 6. Here we let x cube is equals to a and only x cube is equals to a. Now we can write the equation x cube whole of square minus 7x cube minus 8. Okay, then it becomes a square minus 7a minus 8. Clear? Now first we factorize the equation. This is a quadratic equation. Now 8 into a square means 8a square. When we factorize the equation, it becomes a square minus 8a plus a minus 8. Okay, minus 8a plus a is minus 7a and when we multiply it we get minus 8a square. Now after taking common a we get a minus 8 plus here we take common 1. Okay, we get a minus 8. Now after taking common a minus 8 we get a minus 8 and a plus. Okay students, now after putting the value of a we get value is x cube means x cube minus 8 and x cube plus 1. Now here we use the identity, these identity. Firstly it become x cube minus 2 cube and this is x cube plus 1 cube. We can write it in the form of this. Now after using identity it become x minus 2 and x square plus 2x plus b square is 4. Similarly here x plus 1 and x square plus x plus 1. Okay, this is the final answer of the question. Okay students, that's all for today. In this chapter we learned how to factorize the equation in factorization. Firstly we learned about the polynomial, okay, and then we learned how to factorize the equation. In factorization we learned by taking the common and by grouping method, and the third method is by splitting the middle term of the equation, and by when the sum and difference of the square, when the difference of square is given
and when the sum and difference of the shoes is given. Okay, now that's all for today. Thank you so much. Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Today's this class is related to the history chapter of class 9, chapter 3, Forest Society and Colonialism. In my previous videos, I had already explained this chapter in my 2 videos, and this is the third lecture of this chapter. And now the Forest Society. Forest Society, I had already explained you what are the जो है फॉरेस्ट सोसाइटीज किस तरह की होती थी और कॉलोनियल पीरियड में उनमें क्या इफेक्ट पड़ता था. कॉलोनिज्म, आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू, कॉलोनिज्म इज व्हेन वन कंट्री कंट्रोल्ड इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली कंट्रोल्ड एंड एक्सप्लॉइटेड टू अदर कंट्री. जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को पॉलिटिकली कंट्रोल कर लेती है और इकोनॉमिकली उसको एक्सप्लॉइट करती चली जाती है, तब वो पीरियड जो होता है वो कॉलोनियल पीरियड कहलाता है. जैसे इन इंडिया जब ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने हमारी कंट्री को, इंडिया को जो है पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कंट्रोल और एक्सप्लॉइट कर लिया था, वही टाइम था. तो हमने देखा, हम इसमें इस चैप्टर में ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोलोनियलिज्म के टाइम पर जब जिस समय कोलोनियल पीरियड चला था, न केवल इंडिया में बल्कि बस्तर में, जावा में या और भी जगह पर जहां पर उन्होंने अपनी किसी तरीके से इंडिया को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में किया था. वैसे ही हम जो यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जावा का पढ़ेंगे, जिसको कि डच ने अपने कंट्रोल में कर रखा था और वो डच कोलोनियल एरिया कहलाता था जावा, जो कि एक जगह है, ये इंडोनेशिया का एक आइलैंड है. ठीक है, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि फॉरेस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन जावा में किस तरह हुआ. अपने प्रीवियस वीडियो में हमने बस्तर के बारे में पढ़ा था. बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ का जो है वो एक क्या प्लेस था और किस तरीके से वहां पर जो बहुत सारी जो है वो भटकास और मियाबोर, इस तरह की जो बहुत सारी ट्राइब्स रही थी, उनके साथ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया, किस तरीके से उनसे उनके हंटिंग है, फिशिंग है, इन सब पे बैन लगाया, बहुत सारे फॉरेस्ट रूल्स लगाए, जिसका उन्होंने जिसके वो अगेंस्ट हो गए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया. और ये स्ट्रगल जो था वो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी चलता रहा बहुत दिनों तक. तो इस तरह से हमने बस्तर के बारे में पढ़ा था. अब हम आज पढ़ेंगे कि जावा में क्या हुआ. जावा जो है वो इंडोनेशिया का एक आइलैंड है. वहां पर जो था वो बहुत ज्यादा राइस प्रोड्यूसिंग इंडोनेशिया के नाम से फेमस था. जो जावा जगह थी वो राइस प्रोड्यूसिंग इंडोनेशिया के नाम से फेमस थी और वहां पर डच का कोलोनियल रूल एरिया था. वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडोनेशिया को डच ने अपने कोलोनियल कंट्रोल में कर रखा था. सो अब वहां पे डच क्या करते थे, डच जावा से टिम्बर को कलेक्ट करते थे फॉर शिपिंग एंड रेलवे. वो शिपिंग के लिए और रेलवे के लिए, रेलवेज के वर्क के लिए. रेलवेज में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बस्तर में भी मैंने बताया था कि रेलवे में जो एक ट्रैक बनते हैं, उनके बीच में जो उनकी ट्रैक्स को जो सेट करने के लिए जो ब्लॉक्स लगाए जाते हैं वो वुड के होते थे. और भी बहुत समय पहले क्या होता था, फ्यूल की जगह में ट्रेन्स में फ्यूल की जगह जो था वो वुड यूज होता था. इसलिए उस समय वुड की, टिम्बर की बहुत ज्यादा नीड होती थी और इन नीड्स को पूरा करने के लिए वो लोग फॉरेस्ट को जो है वो डिफॉरेस्टेशन करते थे. जबकि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे रीजन थे. तो ये भी एक रीजन था जिसमें शिपिंग और रेलवे था. तो ये डच क्या करते थे, जावा से जो है वो कलेक्ट करते थे टिम्बर को शिपिंग के लिए और रेलवे के लिए. अब उसके बाद क्या हुआ, वहां पर बहुत सारी कम्युनिटीज थी जिसमें कलंदाज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी. इसके साथ ही डच ने कंट्रोल कर रखा था फॉरेस्ट को और उन्होंने, डच ने क्या किया, जब डच ने वहां पे अपनी कॉलोनी बनाई, अपनी स्टैब्लिश करी, तो वहां पर उसने उनको पॉलिटिकली भी कंट्रोल करना शुरू किया और इकोनॉमिकली उनको एक्सप्लॉइट करना जब स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉरेस्ट को अपने कब्जे में ले लिया और उनपे बहुत सारे उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन लगा दिए. वही फॉरेस्ट जो कि उनका लिवलीहुड था, जो उनका वर्क प्लेस था, जहां से वो रहते थे, बट डच ने क्या किया, वहां पर उनको जो है वो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन लगाए. उसने बहुत सारे बैन लगाए, उसमें मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी. द फर्स्ट इज नॉट अलाउड टू मेक यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस. मतलब कि अब उन्होंने जावा की जो भी ट्राइब्स थी, जो भी वहां की कम्युनिटीज थी कलंगा टाइप में, उन कम्युनिटीज को मना कर दिया ताकि वो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को, जो भी चीजें फॉरेस्ट में प्रोड्यूस हो रही है वो उनको नहीं दी जाएंगी. नॉट अलाउड टू मेक. द सेकंड, ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट वाज बैन. जो है वो फॉरेस्ट में ग्रेजिंग को बैन कर दिया. थर्ड, नॉट अलाउड टू ट्रैवल ऑन फॉरेस्ट रूट. इट्स नॉट रूट, इट्स रोड विद डियर, हॉर्स, कैट एंड कैटल. और उन्होंने बोल दिया कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप फॉरेस्ट की रोड से अपने कैटल्स को या अपने हॉर्स या कैट, इन सबको, अपने कैटल को लेकर आप जो है वो फॉरेस्ट की रोड से नहीं निकलेंगे.
ट्रेवल नहीं करेंगे। उस पर भी बैन लगा दिया। मैनी फॉरेस्ट रूल्स और लॉ, बहुत सारे फॉरेस्ट रूल और लॉज उसने उनके ऊपर लगा दिए। इसके साथ साथ दे स्टार्टेड फॉरेस्ट सर्विसेज, इसके साथ उन्होंने फॉरेस्ट की सर्विसेज भी स्टार्ट करी। जैसे कि इंडिया में हमने पढ़ा था किस तरीके से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हुआ और फॉरेस्ट सर्विसेज को जो है वो स्टार्ट किया गया। बहुत सारे फॉरेस्ट के ऑफिसर्स को चुना गया जिन्होंने अपने अंडर में इस तरह के बैन लगा के रूल्स और रेगुलेशन को लगाकर वहां की जो कम्युनिटीज थी उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया था। इसके साथ ही एक न्यू सिस्टम उन्होंने बना दिया जिसको हम लोग ब्लॉन्डोगेनेशन बोलते हैं। और इसी के साथ इम्पोज, जिसमें क्या होता था, जो कल्टीवेटेड लैंड होती थी इस सिस्टम के अंदर, जो भी कल्टीवेटेड लैंड थी उस पे भी वो लोग रेंट लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि मतलब अगर किसी भी कम्युनिटी को फॉरेस्ट में कल्टीवेशन करना है तो उस जिस भी लैंड पर वो कल्टीवेशन करेंगे उन्हें उसका रेंट देना पड़ेगा, लाइक दैट। एंड लास्ट था 1819 बिलोंग्स टू टीक फॉरेस्ट, सामिन, और उसमें सामिन भी टीक फॉरेस्ट था, उसको भी उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से जो डच रूलर्स थे, जो डच थे, उन्होंने किस तरह से जावा, जो कि एक आइलैंड था इंडोनेशिया का, उस पे उसके जो है फॉरेस्ट पे पूरा उन्होंने कब्जा किया और बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को लगाया। फाइट होना लाजमी था। ऑल कम्युनिटीज ऑफ जावा फाइट अगेंस्ट डच, वो सब डच के अगेंस्ट उन्होंने फाइट करना स्टार्ट किया और बहुत सारे फॉरेस्ट रूल्स और लॉ के भी अगेंस्ट हो गए वो, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और मूवमेंट भी किया और बहुत दिनों तक स्ट्रगल भी करते रहे अपने राइट्स को वापस लेने के लिए, अपने जो है फॉरेस्ट में अपने घर में वापस आने के लिए। तो ये हमने पढ़ा जावा के बारे में। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का कि क्या या किस तरह से जो वॉर्स होते हैं, जैसे उस समय में हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो क्या फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर का फॉरेस्ट पर भी कोई इफेक्ट पड़ता है? क्या उससे हमारे फॉरेस्ट भी अफेक्टेड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्यों होते हैं मैं भी आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि जिस समय पर वॉर हो रहे होते हैं तो वॉर के लिए बहुत सारी जो है वो बनाने के लिए, जैसे उनके आर्म्स या उनके जो है वो कितने भी हथियार या जो भी कुछ बनाने के लिए होता है वो सब जरूरत होती है उनकी ड्रेस बनाने के लिए, या तो उसके लिए क्या होता है उनको फैक्ट्रीज लगाने की जरूरत होती है, उसके लिए बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है या बहुत सारे टिम्बर की जरूरत होती है या और भी बहुत सारी चीजों की, तो वो फॉरेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे कि इसमें यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ वो ये कि जो जावा ऑक्युपाइड बाय जैपनीज, जो जावा का जो फॉरेस्ट था, जब देखा कि वहां पे डच उन्हें परेशान कर रहे थे और जावा बहुत वीक होता चला जा रहा था, तो क्या किया, जैपनीज ने उनको ऑक्युपाइड कर लिया, जैपनीज ने उस पर कब्जा किया और उन्होंने वहां के फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि जो जैपनीज थे वो भी बहुत ज्यादा वॉर में इन्वॉल्व रहते थे और उनको अपने वॉर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए टिम्बर्स की जरूरत होती थी या और बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्शन की जरूरत होती थी, जो उन्होंने जावा के फॉरेस्ट से अपनी नीड्स को उन्होंने फुलफिल किया। इसी के साथ साथ इंडियन फॉरेस्ट जो डिस्ट्रॉयड हुए वो ब्रिटिशर्स की वजह से हुए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी अपनी ट्रूप्स को यहाँ से वहां ले जाने के लिए उन्हें बहुत सारे रेलवे ट्रैक की जरूरत थी और रेलवे ट्रैक के लिए उनको टिम्बर की जरूरत थी और टिम्बर के लिए उन्होंने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने और जावा में जो है वो डच ने और जैपनीज ने, मतलब डच ने पहले कंट्रोल किया और उसके बाद फिर जैपनीज ने उसको ऑक्युपाइड कर लिया और उनके जंगलों को डिस्ट्रॉय कर दिया अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सो बट टुडेज टाइम चेंज, आज के समय में ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे कंट्रीज जो है वो फ्री हो चुके हैं, उनको जो है वो फ्रीडम मिल गई है। तो आज जो भी कंट्री है वो उनकी अपनी गवर्नमेंट है और उन्होंने फॉरेस्ट को बहुत अच्छे से फॉरेस्ट के मैनेजमेंट को स्टार्ट किया, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन को जरूरी समझा। जो भी उन्होंने एक्ट बनाए वो सबको देखते हुए, चाहे वो फॉरेस्ट कम्युनिटीज हो, फॉरेस्ट ट्राइब हो, उनके भी फायदे में सोचा, उनके लिए बेनिफिट के लिए भी सोचा और इसके साथ साथ उन्होंने कंट्री के भी बेनिफिट के बारे में सोचा। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट जो होती है वो हमारी कंट्री के इनकम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नेशनल इनकम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज के समय में क्या स्टार्ट हुआ, जैसे गवर्नमेंट ऑफ एशिया और अफ्रीका ने क्या किया, रियलाइज किया दैट वी डोंट सेपरेट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री टू फॉरेस्ट कम्युनिटीज। अब उनको ये समझ में आने लगा था गवर्नमेंट को, एशिया और अफ्रीका के, कि हम फॉरेस्ट की कम्युनिटीज को फॉरेस्ट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि बिना साइंटिफिक, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में उन्होंने वो लोग फॉरेस्ट के इनप्रोडक्टिव थे, अनप्रोडक्टिव थे, वो मतलब फॉरेस्ट को ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं मानते थे। लेकिन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट को समझ में आने लगा था कि फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही प्रोडक्टिव है और उससे हम बहुत सारी इनकम, स्टेट इनकम को और बहुत सारे बेनिफिट्स को हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उनको ये समझ में आने लगा था कि अब हमें फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने समझ लिया था कि हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को और फॉरेस्ट कम्युनिटीज को, तो हमें दोनों को साथ लेकर ही चलना है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट बिफोर टिम्बर प्रोड्यूस। मैंने कहा कि
टिम्बर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, वो तो इम्पोर्टेंट है कि हम किस तरह से टिम्बर का प्रोडक्शन बढ़ाएं, बट इसके साथ साथ जो टिम्बर हमारे पास है, जो फॉरेस्ट हमारे पास है, हमें उनको पहले कंजर्व भी करने की जरूरत है। और ज्यादा एफ्रोस्टेशन करने से पहले, बिफोर, हमें क्या करना है, हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना है। टू इन्वॉल्व फॉरेस्ट कम्युनिटीज टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और हमें क्या करना है, फॉरेस्ट कम्युनिटीज को फॉरेस्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करना है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम फॉरेस्ट की कोई भी रूल्स या रेगुलेशन बना रहे हैं या हम कोई भी फॉरेस्ट का मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें फॉरेस्ट कम्युनिटीज की हेल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी वहाँ के लोकल पीपल्स होते हैं, अगर हम उनके साथ मिलके फॉरेस्ट का मैनेजमेंट देखते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बजाय इसके कि हम उन्हें वहां से निकाल कर बाहर कर दें। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ का आइडिया होता है और वो नॉन टिम्बर के तरीके से, आप वो कुछ सामान आप उनको दें या आप उनको जो है वो कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी वो फॉरेस्ट से ले रहे हैं, उसके बदले में वो आपकी बहुत सारी चीजों में आपकी हेल्प कर देते हैं। इसलिए अब गवर्नमेंट को ये समझ में आने लगा था कि फॉरेस्ट कम्युनिटीज की हेल्प के बिना फॉरेस्ट का मैनेजमेंट या फॉरेस्ट का कंजर्वेशन जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फॉर अवे फ्रॉम द कंफ्लिक्ट, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कंफ्लिक्ट से बहुत दूर हो जाते हैं, लड़ाई खत्म हो जाएगी, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा। एंड द फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक फॉरेस्ट मैनेजमेंट नहीं होगा, हम रिजर्व फॉरेस्ट है या जो है कंजर्व फॉरेस्ट अगर हम उनको नहीं रखेंगे तो हमारी आगे की जनरेशन के लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी होने वाली हैं। तो अब गवर्नमेंट को ये चीज समझ में आई, टाइम चेंज हुआ, उन्होंने बजाय जावा और बस्तर की सिचुएशन को लाने के उन्होंने ये कोशिश करी कि हमें कम्युनिटीज को मैनेजमेंट के साथ में जोड़कर तब हमें आगे कोई भी काम करना चाहिए। That's all for today. This chapter is also finished. And now the next chapter in geography, the drainage. I will start the drainage of geography in my next video. Thank you and have a nice day. Hello students, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं क्लास 9th में विषय हिंदी संस्कृत खंड के अंतर्गत वंदना शीर्षक पाठ पढ़ूंगी। बच्चों, इस श्लोकों का हिंदी अनुवाद बहुत
योर